Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 5 on the topic The Fantastic Shoemaker, which is unit number 7 of your textbook. Before going to translate this passage, let me tell you about the objective that you are supposed to attend at the completion of this lesson. As usual, first of all, you should be able to make MCQs out of the text. Secondly, you should be able to translate your text. And thirdly, you should be able to answer the question at the end of the lesson. Grammatical structures, which are the most important objective of the lesson, means that you should know about the grammatical structures which have been used inside the text. And in the last, the objectives which is related to your routine life, that is dignity of labor. Dignity of labor. Now, before going to translate this passage, let me tell you about the brief sketch of the same lesson. So in this lesson, we are told about a fantastic shoemaker whose shop is situated in busy Kisahwani Bazaar. The writer, for the first time, he met this fantastic shoemaker when he was going to order a pair of shoes for the upcoming Eid. So what he saw over there, that there was a big Peshawari chappal which was hanging on the door or over the door of that shop, and means the environment of that shop was quite serene and quiet. That was serene and full of calmness. This fantastic shoemaker was a bony person of 40 to 45, and there were different tools inside the shop, including awl, including anvil, including hammer. So we are told about the different tools which were used in making shoes. And then we are told about the the discussions that took place between the fantastic shoemaker and the writer. Then he went abroad. The writer went abroad to make his career and for higher studies. When he came back after 15 years, so first of all, he met the same fantastic shoemaker in Kisahwani Bazaar. So what happened? What types of discussion took place between this fantastic shoemaker and the writer when he came back to his country after making his career? So we will discuss the same thing in this passage. So let's take a start. First of all, जब वो वापस आ गए, अपने मुल्क वापस आ गए, वो जो राइटर है, तो वो किससे मिले? वो किसाहानी बाज़ार चले गए और वही जो फैंटास्टिक शूमेकर था, जो अजीब व गरीब जूते बनाने वाला था, जो चमियार था, उससे वो मिले. और फिर क्या हुआ? He shook his bony hand with me. वो जो फैंटास्टिक शूमेकर था, जो अजीब व गरीब, जो उम्दा, जो बेहतरीन जूते बनाने वाला था, उसने अपना बोनी हैंड, अपना जो कमज़ोर हाथ था, बोनी मीन्स कमज़ोर, उस हाथ को क्या किया? विद मी, मेरे साथ अपना कमज़ोर हाथ मिलाया. बट द ग्रिप ऑफ हिज हैंड, लेकिन उसके क्या हाथ की जो पकड़ थी, ग्रिप मीन्स पकड़, वॉज एज इट वॉज मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले. यानी उनकी हाथ की जो पकड़ थी वाज एज, वो बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह वो बहुत यानी कई साल पहले जिस तरह उसकी पकड़ थी, अभी भी उसके हाथों की पकड़ उसी तरह थी, बिल्कुल उसी तरह उनके हाथ की पकड़ थी जिस तरह कई साल पहले हुआ करती थी. देखो, ही शॉक, उसने मिलाया, हिज बोनी, अपने कमज़ोर हाथ को, विद मी, मेरे साथ मिलाया. बट द ग्रिप, लेकिन वो जो पकड़ थी, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ की, वाज एज, बिल्कुल उसी तरह थी, इट वाज मैनी ईयर्स एगो, जिस तरह वो कई साल पहले थी. यानी उसके हाथ की जो पकड़ थी वो बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह वो कई साल पहले हुआ करती थी. एट फर्स्ट, शुरू में, ही डिड नॉट नो मी, उसने मुझे नहीं पहचाना. यानी शुरू में
जब मैं उससे मिला 15 साल के बाद जब मैं उससे मिला दोबारा, तो उसने क्या किया? ही डिड नॉट नो मी। तो उस जूते बनाने वाले ने मुझे नहीं पहचाना। ही डिड नॉट नो मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। बट व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मीन्स तारुफ करवाना। जब मैंने क्या किया? व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो फिर क्या हुआ? हिज ब्रूडेड आइज, उसकी क्या? ब्रूडेड का लफ्ज़ी माने है सोचने वाले, यानी सोचने वाली या क्या फिक्र करने वाली। ब्रूडेड मीन्स सोचने वाली। सो ब्रूडेड आई स्पार्कल, जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसकी जो सोचने वाली आंखें थी, जो गौर व फिक्र करने वाली आंखें थी, उसकी जो बरी हुई आंखें थी, उसने क्या किया? स्पार्कल्ड, वो चमक उठी। विथ स्माइल, मुस्कुराहट से, यानी उसने क्या? उसकी आंखें जो थी, उसकी जो सोचो विचार वाली आंखें थी, जो बरी हुई आंखें थी, वो क्या? वो चमक उठी एक मुस्कुराहट के साथ। स्पार्कल्ड, वो चमकी, वो चमक उठी। विथ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। डू यू वांट एनी शूज़, जब उसकी आंखें चमक उठी मुस्कुराहट से, तो फिर क्या हुआ? उसने क्या पूछा? डू यू वांट एनी शूज़, क्या तुम जूते चाहते हो? क्या तुम जूतों की जोड़ी चाहते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। यानी शुरू में उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने मुझे पहचाना तो उसकी जो आंखें थी, जो सोचने वाली आंखें, जो बरी हुई आंखें थी, वो एक मुस्कुराहट के साथ वो क्या? वो मेरी तरफ उठी और उसने पूछा, क्या तुम जूते चाहते हो? डू यू वांट एनी शूज़, क्या तुम किसी किस्म के जूते चाहते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं जूते बहुत जल्दी से बना सकता हूँ। क्विकली मीन्स जल्दी से। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें जूते चाहिए? मैं जूतों को बहुत जल्दी से बना सकता हूँ। बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मीन्स फारिग वक्त है। फ्री मीन्स फारिग, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फारिग वक्त है तो उसको मैं जल्दी से बना सकता हूँ। देन ही लुक्ड एट माई ब्रांडेड शूज़, फिर जो है वो जो क्या था, जूते बनाने वाला था, उसने क्या किया? उसने मेरे ब्रांड मीन्स कंपनी के बने हुए, ब्रांड मीन्स कंपनी के बने हुए। ब्रांडेड का लफ्ज़ी माने है निशान वाला या मार्के वाला, जिस पे शनाख्त हो, निशान हो, उसको क्या कहते हैं? ब्रांडेड। यहाँ पे ब्रांडेड का मतलब है कंपनी का बना हुआ, जिस पे मार्का हो, जिस पे निशान हो कंपनी का, उसको क्या कहते हैं? ब्रांडेड शूज़। यानी फिर उसने मेरे क्या? कंपनी के बने हुए जूतों की तरफ देखा एंड सेड, और कहा, दोज आर नॉट माई शूज़, ये मेरे जूते नहीं है, यानी ये जूते मैंने नहीं बनाए हैं। दो शूज़ आर नॉट माई शूज़, ये जूते मेरे जूते नहीं है। हिज टोन, उसकी जो आवाज़ थी, टोन मीन्स आवाज़, लहजा, वाज नॉट वन ऑफ अ एंगर, उसकी जो आवाज़ थी वो क्या थी? वो गुस्से वाली आवाज़ नहीं थी। उसकी जो आवाज़ थी वो गुस्से वाली आवाज़ नहीं थी। और सारो या मायूसी, परेशानी वाली, मायूसी वाली आवाज़ नहीं। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और उसका जो लहजा था, उसकी जो आवाज़ थी वो नफ़रत वाली नहीं थी। कंटेम्प्ट मीन्स नफ़रत, हकारत। बट देयर वॉज इन इट समथिंग, बल्कि उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी, क्वाइट, ऐसी क्या? एक पोशीदा बात थी। क्वाइट मीन्स खामोश, पोशीदा। दैट फ्रोज माई ब्लड, जिसने मुंजमिद किया, फ्रोज मीन्स मुंजमिद करना, माई ब्लड, मेरी खून को। यानी उसकी आवाज़ जो थी, जब उसने मुझसे पूछा कि ये जूते मेरे जूते नहीं है, तो उसकी आवाज़ क्या थी? वो ऐसी थी कि उसमें क्या? उसमें गुस्सा नहीं थी, उस आवाज़ में उसमें मायूसी नहीं थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और न उसकी आवाज़ में क्या थी? नफ़रत नहीं थी।
जब उसने मुझसे पूछा कि ये जूते मेरे नहीं है, तो उसकी आवाज़ में न क्या थी, न नफ़रत थी, न उसमें मायूसी थी, और न उसमें क्या था, एंगर, न उसमें गुस्सा थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग, बल्कि उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी क्या थी, चीज़ थी, कुछ ऐसी बात थी, समथिंग क्वाइट, जो बिल्कुल क्या थी, उसमें एक पोशीदा, एक खामोश बात थी, दैट फ्रोज माई ब्लड, जिसने मेरे क्या किया, मेरे खून को मुंजमद किया, मेरे खून को फ्रोज किया। फ्रोज मीन्स मुंजमद करना। ही पुट हिज हैंड्स डाउन, उसने अपने हाथों को, he puts his hands down, उसने अपने हाथों को नीचे रखा, and passed, और गुजारा, पास मीन्स गुजारना, a finger, और एक क्या उंगली को उसने गुजारा, on the place, उस जगह पे, where my left shoes, जहाँ पे मेरा जो क्या था, मेरे क्या था, जो बाएं तरफ का जो जूता था, नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, यानी मेरे जो बाएं पैर का जो जूता था वो क्या था, जो बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं था। कंफर्टेबल मीन्स आरामदेह, यानी उसने उसी जगह पे अपने क्या उंगली को रखा जहाँ पे मेरे क्या था, बाएं पैर का जो जूता था वो ज़्यादा आरामदेह नहीं था। कंफर्टेबल मीन्स आरामदेह। उसने क्या कहा, इट हर्ट्स यू, ये आपको काटता है, यानी जूते का ये हिस्सा जो है, जो बाएं तरफ का जो क्या था, जो जूता था, बाएं पैर का जो जूता था वो क्या था, उसने मुझे बताया कि इट हर्ट्स यू, वो आपको काटता है। ही सेड, उसने कहा, डू द बिग शू मेकिंग कंपनीज, क्या जो बड़े जूते बनाने वाले कंपनीज है, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या उनका इज्जत नफ्स नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट में इज्जत नफ्स, यानी उसने क्या किया, अपने हाथ को, अपनी उंगली को उस जगह पे रखा, मेरे पाँव के, यानी मेरे क्या उस जूते पे रखा, मेरे बाएं पैर के जूते पे उस जगह पे अपने उंगली को रखा जहाँ पे वो क्या करता था, वो मुझे काटता था। और उसने क्या कहा कि क्या इस बड़े, मतलब एक जो बड़ी कंपनियां हैं, जूते बनाने वाली जो कंपनियां हैं, क्या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स नहीं है। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जब वापस आया, कौन, ये जो राइटर है, जब वो वापस आया अपने मुल्क, ये बाहर गया हुआ था अपने क्या आला तालीम के लिए और अपने माश को बेहतर बनाने के लिए बाहर चला गया था। 15 साल के बाद जब ये वापस आया तो दोबारा वो उसी फैंटास्टिक जो शू मेकर था, जो जूते बनाने वाला था, जो उम्दा बेहतरीन जूते बनाने वाला था, उससे मिलने के सहानी बाज़ार चला गया। शुरू में तो उसने इसको नहीं पहचाना, लेकिन बाद में उसने पहचाना इसको, और उसकी आंखें जो है एक मुस्कुराहट के साथ चमक उठी, और उसने इससे पूछा कि क्या आपको जूते चाहिए? अगर आपको जूते चाहिए तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। किसने बताया? जूते बनाने वाले ने कहा कि मेरे पास काफ़ी टाइम है। फिर उसने क्या किया, उसी जूतों की तरफ देखा जो इस राइटर ने क्या पहने हुए थे, और उसने कहा कौन से जूते, जो ब्रांडेड, जो कंपनी के बने हुए जूते थे, उस पर अपनी जो उंगली जो है, उस बाएं पैर का जो जूता था उस पर अपने क्या, अपने उंगली को दबाया और कहा कि ये जगह आपको काटती है। और फिर क्या कहा, उसने कहा कि क्या जो बड़ी कंपनियां हैं जो जूते बनाते हैं, क्या उनका इज़्ज़त नफ्स नहीं है? तो ये सारा क्या है, मैंने आपको ट्रांसलेशन किया इस पूरे पैसेज की। अभी ट्रांसलेशन के बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है उसको हमने डिस्कस करना है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेम पैसेज। ओके, नाउ यू सी, ही शॉक his bony hands. Shock. Now he is basically, this is a personal pronoun. He क्या है? ये personal pronoun है. We call it third person. हम क्या कहते हैं? third person of personal pronoun. ये third person pronoun है. first हमारा क्या है? I, we जो है ये first person pronoun है. you जो है वो second person pronoun है, और he जो है ये third person pronoun है. फिर हमारे पास
जो नेक्स्ट है वो क्या है, लफ्ज़ शॉक। शॉक आपको पता है ये क्या है, दिस इज़ अ वर्ब। हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको क्या, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। हिज बोनी हैंड जो है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिस पे काम हो रहा होता है। यानी इस शॉक को किसकी ज़रूरत है, अपनी मीनिंग कंप्लीट देने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। सो शॉक इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट मीनिंग, सो वी कॉल इट ट्रांजिटिव वर्ब। Now with me, shock with me, hand with me. With me, basically with is a preposition, me is an object. I mean to say this is a pronoun. So basically this is a prepositional phrase. This is a prepositional phrase, hand with me. Okay, so this is a prepositional phrase. The next word we have but. But is conjunction. But is a conjunction. We call it coordinate conjunction. We call it a coordinate conjunction. But the grip of his hand, the grip of his hand, you see this is a phrase. Grip of his hand is a phrase and we call it, what's we call, this is noun phrase. This is a noun phrase. इसमें जो main word है वो है grip. grip क्या है, noun है। of his hand जो है ये हमारे पास modifier है। ये क्या है, modifier है। ये हमें grip के बारे में बता रहे, of his hand। अगर इसको देखें तो it starts with the preposition of his hand. This is a noun. So basically this is what we call of his hand. This is a prepositional phrase, but here it tells us about grip, which is noun. So it works as a relative phrase or what we call adjective phrase. इसको हम post modifier भी कहते हैं। इसको modifier कहते हैं क्योंकि ये modify करता है इस noun grip को। The next word we have was, as. as जो है हमारे पास it was many. So as it was, यहाँ पे ये conjunction का काम कर रहे हैं। as जो है preposition का भी काम करता है, as जो है adverb का भी काम करता है, और यहाँ पे ये दो clauses, दो phrases को मिला रहे, तो it works as a conjunction, it works as a subordinate conjunction. And was, as it was many years ago. It was many years ago. तो ये it was many years ago ये क्या है, ये clause है, और इस clause को क्या मिलाता है, ये as जो है इस clause को इसके साथ मिलाता है। So here it was many years ago ये एक clause है। Okay, then many, हमारे पास एक लफ्ज़ है many. Many is basically, this is an adjective and it tells us about the word years ago. Many years, years is noun. Ago जो है many years ago, ago adjective के मीनिंग में भी आता है, adjective sometime adverb के मीनिंग में, कि adverb of time को भी शो करता है। So ago हमें time के बारे में बता रहे, so ये adverb of time, ये adverb of time भी है, many years ago। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें ये years के बारे में बता रहे, तो ago यहाँ पे adjective के मीनिंग में भी आता है, it works as an adjective as well। Clear? So many is working as an adjective, years is noun over here, and ago tells us about years, so it works as an adjective over here. At first we have, now you see it is a beginning. At first it is an adverb phrase. It is an adverb phrase. Though at first, at is a preposition, first is an adjective, but here it was as an adverb because it tells us about the whole sentence. At first, शुरू में, he did not know me. He did not know me. Did not. You see, did not. Not is basically, this is an adverb. Not is working as an adverb. Sometimes we call it adverb of affirmation, and sometimes never, like never, it also works as adverb of negation. So इसको adverb of affirmation कहते हैं. And did, as you know, did is working as a helping verb over here. We call it dummy. It works as a helping verb. Clear? No, as you know, this is verb. Me is an object. Me is here working as an object, and it is a pronoun. It is a pronoun. Clear? Now the next word we have but. But is coordinate conjunction. But is a coordinate conjunction. And when, but when I got, when, jab.
So when is also adverb. This is adverb of time. We call it adverb of time. Understand? When I got myself. When I got myself. Now you see, got myself.